आपने सलवार कमीज़ पहन के आप लंदन जा रहे हैं तो वी बिकम कॉन्शियस। हालांकि द फैक्ट इज़ कि when Europeans come to Pakistan, they don't wear a salwar kameez. They're in their own attire, fine. उनका हक बनता है, why not? So we don't raise eyes at them, but at the same time when we go out there, we very conscious कि यार मैं सलवार पर कमीज पहन लिया, people will be looking at me and this and that. I don't know whether people really look at you or even people care, because today everybody has enough problems of his own. But again, if you're thinking कि ठीक है, even if these people think negative of me, ये Eastern fundamentalist आ गया, whatsoever, let them think what they want. But at that very time, trillions of angels and the Anbiya and all the Sulaha and their souls think that I'm doing the right thing. So Hazrat Hakim Sahib was a वाकई आरिफ बिल्ला थे, बहुत ही एंड फिर ये होता है कि इन अल्लाह वालों की ज़बान में तासीर बहुत होती है. द वर्ड्स आर वेरी इफ़ेक्टिव. ये स्टोरी आई थिंक बहुत लोगों ने तो सुनी भी होगी, बट दिस इज़ वेरी समथिंग विच इज़ माइंड बॉगलिंग. वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, कामरान छापरा उसका नाम. तो दिस इज़ अबाउट 20 years ago or even more. So there was theft at his factory. At that time it was like 2.5 million. So it's big money. Truck pe log aaye and took away stuff. And obviously he is a Khalifa of Hazrat Hakim Akhtar Sahib Rahmatullah Alayh. So a big loss, things were not insured, and at that time, even today, you know, once it's gone, it's gone. So he said I was very disturbed. Obviously, you know, कोई ऐसी चीज़ हो गई. And he said in the evening he used to go to Delhi on a daily basis to Hakim Sahib. So in the evening he went to Hazrat, and तो Hazrat ने पूछा कामरान क्या हुआ, what happened? He said Hazrat this and they came by got a truck, and you know in the night they took away the stuff and blah blah blah. So anyway, he said I was quite disturbed obviously, and Hakim Sahib just said one line. He said कामरान रिस्क गया है ना, राजिक तो नहीं गया ना. Your risk has gone, but Razik, Allah subhanahu wa ta'ala, has not gone. He's there. And he said, Humayun, you won't believe कि as soon as Hazrat said that, yeah, बात तो बिल्कुल सही है कि रिस्क गया ना, राजिक तो नहीं गया ना. कह रहे take my word for it कि immediately my whole stress was gone. And I was at peace with myself. ठीक है. And further he said कि Humayun, within the next 3-4 months, Allah subhanahu wa ta'ala gave me double or triple the amount. Similarly, ये अगर मैं अपनी खुद भी बता दूँ आपको कि not one but many experiences, जब इंसान है at times things are troubling you, उसको ये होता है, stress होता है या कुछ होता है, तो बस हज़रत के पास चले जाओ and you know just sit in his company, so half your worries just by sitting in his company go away. और उसके बाद अगर कोई बता कि हज़रत ऐसा हो गया तो हज़रत just says कि यार दुनिया है ना, ये तो क्या इसके लिए क्या फिक्र, ये तो दुनिया है ना यार, ठीक हो जाएगा, ये वक्त गुजर जाएगा. एंड हज़रत की ये जुमला सा बचता है, एंड दैट्स इनफ. उसके बाद फिर क्या कहते हैं, अकूना मटाटा मीन्स नो वरीज. उसके बाद कोई बिल्कुल एक्चुअली यूसली जब ये कह देते हैं तो इट रियली एंटर्स योर हार्ट कि वाकई दुनिया है ना. अच्छा, ऑब्वियसली हम खुद भी बड़े डेढ़ होशियार हैं, हमें भी पता है ये दुनिया ही है, बट व्हेन इट कम्स फ्रॉम देयर माउथ्स, एंड इट्स नॉट ओनली देयर माउथ, इट्स देयर तवज्जो. जस्ट लाइक हदीस मुबारका में द इंसिडेंट व्हेन, जिसका मफहूम है हदीस का कि व्हेन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर रज़ियल्लाहु ताला आर टुगेदर, एंड आप सल्लल्लाहु says to Umar रज़ियल्लाहु ताला नो that your iman is not complete until and unless
your love for me is more than your love for your children, your wife, your money, your assets. So much so that your love for me is more than the love for yourself. That the love which you have for your own self, it has to be more than that. So Umar Raziallahu Ta'ala anhu says, Ya Rasulullah, till now you were more dearer to me than my children, than my mal and anything else, except for my own self. And then he says, Ya Rasulullah, but now you are more dearer to me even than my own self. तो उस पर तफसीर में उलमा यही फरमाते हैं कि why at that time, आप सल्लल्लाहु अलान या उमर, no उमर. So in the explanations, ulama specify that it was not just the wording of Rasulullah sallallahu, but also his tawajjuh that actually changed the heart of Umar Raziallahu Ta'ala. It got him to the next level. So similarity के साथ, because these people are, you know, lineage wise the khulafa of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, तो इनकी भी बात में वो तासीर होती है ना. When they say something, it really hits your heart. And it's because otherwise तो हम खुद भी बड़े सियाने हैं, we search Google and everything, so we know everything. But when they say कि यार इससे रुक जाओ, when I got bayat to Hazrat, so at that time I was the first one who got bayat to Hazrat. So he said that conditions, you'll have to leave music, listening to music, playing music. Beard should be Sharia compliant, fine. No pictures, and so that's your printed pictures, and and no TV. So I said the remaining things that ठीक है यार, ये तो हो जाएगा, that's not a problem. But no TV, no. This is back in '91. So I used to love these comedy plays, and so I said, ये कैसे होएगा? How do you leave? You know, beard. At that time I had not a Sharia compliant beard, but a beard. So ठीक है यार, वो इसको छोड़ देंगे. Doesn't matter. Pictures, I was never fond of photography. So ठीक है. Music, yes, I was fond of playing the guitar or ये फलाना. चलो वो भी छोड़ देंगे. Doesn't matter. But how do you leave television? अच्छा, उसमें मगर the best part is कि after that the desire to watch television just vanished. तो मज़े की बात ये कि it was not a mujahida for me to leave television because there was no desire. और ये हज़रत की करामत थी. I mean literally, I mean I openly admit, हज़रत की तो करामतें और तवज्जो मैंने बहुत देखी हैं. He's not the type who'd really, you know, be chasing you with a stick, do this, do that. कुछ भी नहीं. But with his tawajjuh, everything comes from within. I remember going to Hazrat and saying कि Hazrat मुझे शौक हो रहा है इमामा पहनने का. I mean, honestly, I would never have thought कि मैं ज़िंदगी में कभी इमामा पहनूंगा. I mean, forget it. मैं ज़िंदगी में टोपी भी पहनूंगा, except for namaz, fine. But other than that, so here's somebody with that background coming in, and अब वो आ रहा है, खुद जा रहा है हज़रत के पास कि हज़रत मुझे इमामा पहनना है. And हज़रत ने मुझे कभी नहीं बोला तुम इमामा पहनो. But he said, अच्छा तुमने पहनना है. So he gave me one of his own old imamas. And this is at least 32 years कम से कम हो गए होंगे इस बात को. And alhamdulillah 32 years से I've been wearing his imamas. ये भी उनका इमामा है. 32 years से I've never bought a imama. क्योंकि वो इससे पहले कि मेरा कोई पुराना हो जाता, he gives me another one. And once he said to me कि मैं तुझे I give you my old imamas, तो तुम भी क्या कहोगे, तो let me give you a new one. I said, no Hazrat, I can buy a million new ones in the market, but आप वाला जो है ना, वो used वाला कहीं नहीं मुझे मिलेगा. Because I've seen the barka in reality, इसको आप उसकी vibe कह दें इमामे की या whatever, I don't know. But I've seen the
रिज़ल्ट ना, तो ये इन लोगों की ज़बान में एक अजीब तासीर होती है। देर मैं आपको बड़ी ऑनेस्टली बात बताऊँ, आप सब साथी हो यहाँ, कि मैनी अ टाइम्स टुडे, आज मस्जिदों में कभी बयान हो रहा होता है, एंड सो आई रियली थिंक टू माई सेल्फ कि यार हुमायूं हनीफ, तूने पैदा होकर कभी सोचा कि यूड बी गिविंग अ सर्मन on the member of a masjid, and you'll have muftis and ulama and mashallah people like that sitting there. I know, I thought, honestly speaking, कभी नहीं सोचा था। बिजनेस टाइकून बनने का तो सोचा था, जो नहीं बने कभी, मगर बहरहाल, मगर ये, और ये सब हज़रत की बरकत है। I've seen, मतलब जिसको मैं कहता हूँ आलम में महसूसात, द डायमेंशन where you get a feel of things, हज़रत की तवज्जुहात से इतनी चीज़ें, अंडरस्टैंडिंग्स, कि मकतूबात शरीफ का दर्स होता है, हज़रत से हमने सिंपली 2003-4 में पढ़ा था ये मकतूबात, और नॉट दैट एलेबरेट, हज़रत ने बस, बट वो हज़रत की तवज्जो है ऐसे, तो हज़रत ऑल्सो, हज़रत वो आपकी तवज्जो थी कि नो, व्हेन आई स्टार्ट रीडिंग मकतूबात, थिंग्स जस्ट स्टार्ट ओपनिंग, and I know definitely it's not me, it's the sheikh's तवज्जोस। तो वो लाइफ चेंज, दीज पीपल आर लाइफ चेंजर्स। हज़रत हकीम अख्तर साहब की बात हो रही थी, माशाल्लाह, यू सी, एक नहीं, द टाइप ऑफ पीपल हु चेंज्ड, माशाल्लाह, और आज भी माशाल्लाह, दे माशाल्लाह बहुत, अभी भी बिल्कुल चेंज भी है। और तो इन अल्लाह वालों की तरीका यही है। और एक बहुत बड़ी दलील विच वी मस्ट रियलाइज़, कि जितने भी आप बड़े उलमा और पीपल हु मेड अ डिफरेंस इन द लास्ट 1400 ईयर्स, यू लुक एट देम, तो किसी न किसी बुज़ुर्ग से उन्होंने अपने नफ्स का तज़किया करवाया है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, यू नेम इट, किसी को भी आप, रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, एनीवेयर एंड एवरीवेयर, सारे लोग दे वर कनेक्टेड। इमाम, पीपल लाइक इमाम शाफी, इमाम मालिक, ये सारे, ठीक है, दे वजह शोहरत और रीज़न ऑफ फेम वाज फिक, बट दैट डज़ नॉट मीन कि वो इस लाइन से कनेक्टेड नहीं थे। so until and unless आपकी सेल्फ प्योरिफिकेशन नहीं हुई, तब तक आप कोई ऐसा काम नहीं कर पाते कि जिसका थ्रू सेंचुरीज अफेक्ट आए। वो, क्योंकि उस सेंचुरी इफेक्ट के लिए यू नीड इखलास। द मोर इखलास, द मोर इफेक्टिव योर वर्क इज़ गोइंग टू बी। एंड फॉर इखलास you need to do तज़किया नफ्स एज ऑर्डेन्ड बाय द कुरान पाक। जब वो हो जाता है, नफ्स का तज़किया हो जाता है, क्लेंजिंग ऑफ द हार्ट हो जाती है, then whatever you do is effective. It goes through the hearts of people. तो अपने नफ्स का ये तज़किया कराना, अनफॉर्चुनेटली, एक डिलिबरेट कैंपेन है जिस कि इस चीज़ को प्रे डाउन करो, हालांकि दिस इज़ ऑर्डेन्ड बाय द कुरान। अब उससे क्या हो जाता है कि अगर आप वो इखलास निकाल जाते हो, वो प्योरिटी और सिंसेरिटी वाली बात निकल जाती है, तो फिर देन योर ऑल योर एक्शंस आमाल आर जस्ट सुपरफिशियल। तो जस्ट ऊपर से तो बहुत नज़र आ रहे होते हैं, बट वो इफेक्टिव नहीं हो आ रहे थे। इट्स नॉट, दे डोंट, लेट अलोन अदर्स, दे डोंट रियली चेंज यू एज वेल। कि आप बैठ के तो बड़ी बातें कर रहे होते हैं, बट आप अपने घर में ही टेढ़े हैं, आप अपने ऑफिस में ही टेढ़े हैं, आप अपने मामलात में ही टेढ़े हैं, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? सो यू जस्ट टॉकिंग द टॉक, टू वॉक द वॉक, ये इनर क्लेंजिंग ज़रूरी है। ये कोई क्वेश्चन थे किसी के? जी हज़रत, काफ़ी सारे सवाल आता है, मैं वन बाय वन कर लेता हूँ। So the first question किसी साहब ने लिखा है, how does one balance his approach to life? For example, if I become focused on the daily life, I become too hedonistic, that is pleasure seeking and towards sex, drugs, rock and roll. Whereas if I take a macro and external approach to life, then my temperament becomes rather dry and I become cynical in nature. ये आई थिंक सेल्फ, क्या कहते हैं,
सेल्फ थॉट लाइफ स्टाइल्स हैं इनके, कि बैलेंस्ड लाइफ इनको चाहिए. और द फर्स्ट पार्ट वाज इफ आई Become focused, too focused on the daily life. I ऑन द become डेली लाइफ. hedonistic. हाँ, I become hedonistic. अब यहाँ थोड़ा सा वही मसला है ना कि ये इंटरप्रिटेशन के वन वुड बिकम, इफ़ यू फोकस ऑन योर डेली लाइफ यू वुड बिकम हेडनिस्टिक. व्हाई? That means कि your focus on the daily life is not the way it should have been, because and then you have to define pleasure. What is pleasure? ठीक है. Eventually, what do we want from pleasure? Sukoon, tranquility, peace. That is why we go in drugs and stuff like that. Okay. So that's the end product which we want from pleasure. मगर हमारे यहाँ अगर डेली लाइफ एज डिफाइंड बाय द शरिया वाली आप कंप्लाई करते हैं तो यू डोंट बिकम ड्राई. आई थिंक दिस इज़ अ परफेक्ट एग्जांपल कि हम अल्हम्दुलिल्लाह वही बात है ना, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बैठ रहे हैं, हंस रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं. Focusing on our daily life. In fact, we have to, Sharia tells us to focus on our daily life. It does not tell us to run away from our daily life. And it does not tell us to, हम कोई academic beings सिर्फ नहीं हैं जो सिर्फ लफाजियों में फंस के रह जाए. We are human beings. And we are a creation of Allah subhanahu wa ta'ala. So obviously that logically means कि अल्लाह पाक ने जिस तरह ordain की है daily life, that is what we are supposed to be doing. That's the way, अभी मैं जो हमजा से भी कह रहा था, that's how the software is written. Actually the problem is कि हमारी खुद साख्ता description है of our daily life. ठीक है, daily life का क्या मतलब है? I mean, daily life means कि to me it would mean कि जी फजर मस्जिद में पढ़नी है, सुबह उठ के अपने काम पे भी जाना है, हंसी मजाक भी करना है, खाना भी खाना है, और उसमें फिर बच्चों को भी टाइम देना है, अपने ज़िक्र अस्कार को भी टाइम देना है, सबको. That's a balanced life. And whoever does that balance, उस balance में जो चलता है, he is not dry. ठीक है. मगर wherever we take the Western concept, जिसमें अच्छा ओके the Western concept कि daily life में there is no room for spirituality. There is only room for the animal self. ठीक है, आपकी दो parts है ना. You have the animal self and the angelic, जो मलकूत angelic सिफात आप में होती है. तो वहाँ सिर्फ आपके animal self है. Obviously, if you are going to lead a life where there's only the animal self, तो इवेंचुअली आपने कहा प्लेजर और ड्रग्स, और उसके बाद उसका नेट रिजल्ट क्या निकलता है? आई मीन अगेन मैं बार बार ये मिसाल देता हूँ, तो अगर इफ़ दैट इज़ रिक्वायर्ड तो फिर ये वाली लाइफ तो स्वीडन में भी गुजारते हैं और फिनलैंड में भी गुजारते हैं, जापान में भी गुजारते हैं. तो वाई सो मेनी सुसाइड्स? सो हाउ डू वी डिफाइन रियल प्लेजर? What is real pleasure? Is real pleasure the timely ecstasy that our body receives, which eventually does not really take us to tranquility and peace, और जिसको inner peace कहते हैं, जो बार बार मैं मुख्तलिफ मिसालें, माइकल जैक्सन की मैं बार बार मिसाल देता हूँ. So he was doing, I mean he was focusing on his daily life. Would that be correct according to the question? तो उस लिहाज से तो he had all the pleasures, but he did not have tranquility, because tranquility के लिए जो है वो अल्लाह पाक बताते हैं, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब. So people who are enjoying their lives, अब इधर आ जाओ, शरिया कंप्लायंट चल रहे हैं, वो अपनी नमाज भी, क्योंकि शरिया डज नॉट टेल यू कि आप खाओ नहीं, पियो नहीं, अच्छा खाओ, पहनो नहीं, कुछ नहीं. शरिया डज नॉट रिफ्रेन यू फ्रॉम दैट. इट जस्ट टेल्स यू कि भाई आप हलाल खाओ, हलाल चीज़ें जो आपको परमिशन है वो खाओ. एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स
एक चीज़ तो नहीं है ना, तो मिलियंस ऑफ थिंग दैट यू कैन ईट और ड्रिंक और वेयर। तो कहते शरिया कहती ठीक है आप जितना कर सकते हो आप बिल्कुल करो, और द ड्यूटीज़ टुवर्ड्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो बस करते जाओ, अपनी नमाज और वो सब जिस तरह ऑर्डेंड है, यू कीप ऑन डूइंग दैट, अपना जिक्र करते जाओ, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, तो कल्ब के अंदर जो है फिर अल्लाह पाक सुकून डाल देंगे। अब जब सुकून आएगा तो इट्स सुकून is a ecstasy in itself. That is the real ecstasy. Because anybody who'd be going in for drugs or something like that, वो क्या है? People tell me कि वो जी it's a high. You know, so what's happening is कि for a very short time you're just disconnecting with reality. तो which means कि in reality आपको सुकून नहीं है. It's just like you've shunned everything, you've blocked reality. और आप एक वर्चुअल रियलिटी में, एक वर्चुअल उसमें जा रहे हो एंड यू थिंक यू हैव पीस बिकॉज इट्स अ हाई। यू एक्चुअली क्या है कि आपने सिस्टम को ओवरराइड कर दिया, दैट्स इट। आपने सॉल्यूशंस नहीं करे फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम, आपने आप उसको नम कर दिया अपने आप को, बट द पेन इज एक्चुअली देयर, यू आर नॉट फीलिंग इट बट इट्स देयर, द स्ट्रेस, द एंजाइटी, इट्स वेरी मच देयर, but you've made it numb for maybe an hour, 2 hours, 3 hours, 7 hours, 10 hours, but then उसके बाद फिर वही बेचैनी आ जाएगी। तो यहाँ जो हकीकी है वो क्या है कि वी हैव टू फोकस ऑन अ डेली लाइफ, इट्स सो इम्पॉर्टेंट। मैं कल ही बात कर रहा था ना कि भाई आपको डेली लाइफ का स्केड्यूल बनाना है, बट एज ऑर्डेन्ड बाय द मैन्युफैक्चरर, तो फिर तो गाड़ी सही चलेगी ना। और हम कहते नहीं, वी विल नॉट लीड अ लाइफ एज अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज़ टोल्ड अस, बट वी वांट कि हमारी लाइफ सही चलेगी। तो यहाँ यही एक कॉन्फ्लिक्ट है हमारी बात का कि आपने मर्सिडीज़ भी है, ख़रीद लिया, सब कुछ कर दिया है, बट आप उसमें पानी डालते हैं इंस्टेड ऑफ पेट्रोल। बनाने वाले ने कहा इसमें पेट्रोल डालो, आप कहते हैं नहीं यार वो पानी सस्ता है, वाई शुड आई वेस्ट माई टाइम इन मनी ऑन पेट्रोल। तो ठीक है, फिर वही होगा जो हो रहा है। नहीं बट आई एम डूइंग माई जॉब, मैं इसमें डाल रहा हूँ, डाल तो आप रहे हैं बट यू डूइंग इट विद द रॉन्ग इंग्रेडिएंट्स, तो नेट रिजल्ट ये कि इट्स नॉट वर्किंग। और सपोज चलो पानी की मिसाल से थोड़ा सा अपग्रेड कर देते, मे बी केरोसिन डाल रहे हैं आप, तो शायद थोड़ा धक धक करके थोड़ा चल भी जाए, बट दैट इज़ रियली what happens कि मे बी फॉर 1 or half a meter or 2 meters or 10 meters वो गाड़ी चल जाती है, उसके बाद फिर वही। यू सी पीपल हु आर इनटू ड्रग्स, तो फिर अगर उसमें इतना सुकून होता तो फिर वो वन टाइम ड्रग लेता और फिर चिल मोड मैन, पर सारी ज़िंदगी लेके सुकून नहीं होता ना वो। अच्छा फिर क्या होता है कि यू नीड टू इंक्रीज योर डोज, ठीक है, करते करते क्या होता है वो माइकल जैक्सन होता है। आई मीन आई पिटी द मैन, आई एक्चुअली पिटी द मैन कि उसको ही वॉज ओवरडोज से मरा ना बेचारा। क्यों? आई मीन आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग इट, दैट्स बिटवीन हिम एंड अल्लाह सुब्हानहू व तआला, मगर वो बेचारा कितना परेशान होगा, कैन यू इमेजिन? एंड ही हैड ऑल द प्लेजर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड ही कुड पिक अप अ फोन एंड कॉल बुश, उस ज़माने में वो प्रेसिडेंट था, और वाइन वेमेन सॉन्ग सारी चीज़ें थी। तो ये आम वेस्टर्न वर्ल्ड जो एनिमल सेल्फ है वो तो यहीं तक है ना। बट tranquility is not about the animal self in reality. अगर it was about the animal selves तो सबसे ज़्यादा परेशान लोग सहाबा होते, and we see कि सबसे ज़्यादा पुरसुकून लोग सहाबा हैं। They have nothing to eat but they've got no issues. There are no robberies, there's no डकैतीज़। हालांकि हम तो आज को यही कहते हैं ना, इकनॉमिकली अगर सफिशेंट हम नहीं है, इस वास्ते सारे मसले हैं। नॉट टू से कि इकोनॉमिकली अच्छा नहीं होना चाहिए, ठीक है, बट इन रियलिटी सहाबा की ज़िंदगी में व्हेन दे हार्डली हैड एनी थिंग्स, बट लुक एट देयर प्लेजर, लुक एट द, देखो व्हाट इज़ प्लेजर, यू हैव टू रियली डिवाइन। एक वो प्लेजर है द एक्चुअल रियल प्लेजर जो कभी ख़त्म नहीं होता, और एक्चुअली इट इंक्रीजेज। उसी उस्मान रज़ी अल्लाह तआला रात भर कुरान पढ़ रहे हैं, तो अगर उसमें प्लेजर नहीं है, और कैसा प्लेजर है कि वो हमेशा पढ़ रहे हैं। अगर इमाम अबू हनीफ़ा सारी रात इबादत कर रहे हैं तो इट हैज़ टू बी प्लेजर, मुशक्क़त नहीं है। आई मीन दीज पीपल वर नॉट कि वो जन्नत के लिए कर रहे थे, इट हैज़ टू बी, जन्नत के लिए भी सारी रात कब तक लगेगा आदमी, थोड़ी देर बाद थक जाएगा।
तो वो जो फिर वाकई जो दिल में सुकून आ जाता है, ट्रैंक्विलिटी आती है, पीस आता है, उसमें ड्राइनेस बिल्कुल नहीं है। उसमें जितना लुत्फ़ है, ड्राइनेस तो इधर है, बिकॉज वी गेट सिक एंड टायर्ड ऑफ आवर बॉडी प्लेजर्स। वाई डू यू थिंक कि जो आपका माशरा है फ्रॉम हस्बैंड एंड वाइफ, वो फिर गर्लफ्रेंड पे जाता है, फिर वो आदमी बॉयफ्रेंड पे चला जाता है, LGBT पे चला जाता है, बिकॉज उस जो जहाँ आपने अल्लाह के बताया हुआ तरीके को छोड़ दिया, तो क्या हुआ है कि वहाँ प्लेजर है नहीं। तो वन आफ्टर द अदर, यू ट्राइड वन ड्रग, यू वांट टू ट्राई, फिर उससे दिल भर जाएगा, फिर दूसरी की, फिर उससे भर। हाँ, जब आपने अल्लाह सुब्हानहू तआला की बात को मानना शुरू कर दिया, तो फिर आपको फिर एक्चुअल प्लेजर आता है। फिर वो प्लेजर्स आते हैं कि इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह लीव्स किंगशिप, शाह शुजा किरमानी रहमतुल्लाह लीव्स हिज किंगडम, और फिर ये लोग दरवेशी इख्तियार करते हैं। तो एक्चुअल टू फोकस ऑन योर डेली लाइफ, येस वी हैव टू फोकस ऑन योर डेली लाइफ, बट जो हमें मैन्युफैक्चर यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें बनाया ना, ही नोज़ बेस्ट, ट्राई दैट, और सुकून ना आए पैसे वापस। सेकंड सवाल किसी ने भेजा है, is it possible to ever reach a state where you do not hate yourself or eliminate that part of you which self hates? Or eliminate that part of you which self hates? And what is the replacement for self hate? You may say it is self love, but what does that even mean? Why should there be self hate? Why should you hate yourself? पहली बात तो यही है। This shows disturbance in the heart. There should be no self-hate. There should be no self-love. अब मैं ये ज़रा बारीक बात है, ठीक है, सेल्फ लव से मैं क्या मुराद ले रहा हूँ वो भी आप जगह। Why should I hate myself? I did not create myself. Why should I love myself? I did not create myself. ठीक है, but usually we love ourselves. That's where the ego comes in. अच्छा, ये सेल्फ हेट वाली बात क्या आती है कि where you feel कि things are not in your control at all. आप बार बार everything is होता ना hitting the roof. Life is disturbed. ठीक है, things are going berserk. फिर आदमी आखिर में सोचता है कि I cannot control these things, so I am the cause of all this chaos. ठीक है, यहाँ अगर एक आदमी ये जान ले, फर्स्ट ऑफ ऑल अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे बनाया है, ठीक है, एंड अल्लाह लव्स मी। सो जो लव हेट रिलेशनशिप है ना, इस पर तो अल्लाह, बिकॉज अल्लाह लव्स मी, तो इसके लिए जवाब क्या है कि आई शुड लव अल्लाह, और हेट इज़ फॉर द एनिमीज़ ऑफ अल्लाह सुब्हानहू तआला, जो सबसे बड़ा नफ्स और शैतान है। ठीक है, तो ये जज्बा मिसप्लेस हो रहा है। बट मैं द वे आई रीड इट कि इसका रूट कॉज क्या बन रहा है, इसका रूट कॉज क्या रहा है कि वो अपेरेंटली his own life is his or her own life is वो अपने आप को अपनी सो कॉल्ड फेलियर्स के लिए ब्लेम कर रहा है। तो at times we just commit some things like which we regret, that's why maybe the self-hated part। जी, वही मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वी फील कि क्यों हमसे ये गलती हो गई है, या बिकॉज आई डिड दैट थिंग रॉन्ग, इसी वास्ते आई मेड अ लॉस, I was not able to get admission in that university, I was not able to get that job, I messed it for myself. तो अब यहाँ दो चीज़ें हैं कि पहले तो एक तो उस बात पे आ जाते हैं कि जहाँ you did something wrong, ओके, आपने शराब पी ली, you did something wrong, fine, but यहाँ self hate that action, yes, but वहीं तक है। बट ऑन दी अदर हैंड अल्लाह सुब्हानहू तआला ख़ुद ये कहता है कि वमन यामल सुअन औ यज़लिम नफ्सहु सुम्मा यस्तग़फिरुल्लाह यजिदिल्लाह गफ़ूरुर रहीम, कि जिसने अमल किया बुरा, उसने अपने नफ्स पे जुल्म किया मगर फिर तौबा की, मफ़हूम है, तो अल्लाह को पाएगा गफ़ूरुर रहीम। ठीक है, तो जब हमसे
कसूर हो जाए तो अल्लाह पाक कहता है कि जो तौबा कर लेगा अल्लाह उसके लिए गफूर रहीम है। एंड देन कुरान से कि अल्लाह लव्स दोज हु रिपेंट। तो अगर हमसे कोई कसूर हो गया और अल्लाह सुब्हाना ताला और हम माफ़ी मांगते हैं तो इनफैक्ट अल्लाह हमसे और मोहब्बत करेगा। तो बात है कि ये ज़िंदगी की अपॉर्चुनिटीज़, वी कैन टर्न दीज थ्रेट्स इनटू अपॉर्चुनिटी। प्रॉब्लम ये कि जहाँ अब मैं ये सोच रहा होता हूँ, ये तो मैंने कोई सिन की बात कर दी ना, बाहर दुनियावी अनसक्सेसफुल कहीं हुए तो वी थिंक कि वी आर एक्चुअली द मास्टर्स ऑफ आवर डेस्टिनी। वी आर नॉट। येस वी आर ऑर्डेन्ड कि आप असबाब इख्तियार करें, ठीक है, बट दैट्स अबाउट इट। यू सी द गार्डनर सोइंग सो मेनी सीड्स, some of them become trees, others die down. So what wrong has the gardener done? If he's done something wrong, so all the seeds should have died. And he's done everything right, all of them should become trees. So what's the moral of the story? कि भाई बात है कि हमारे को हुक्म सिर्फ ये असबाब इख्तियार करना। एक्चुअली जो रिज़ल्ट आता है ऊपर से आता है। रिज़ल्ट इज़ नॉट इन माई हैंड्स। मैं अमूमन कहता हूँ वी डू नॉट मीट डेस्टिनी, डेस्टिनी मीट्स अस। हम इतनी चीज़ें प्लान कर रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, अगर ये हमें समझ में आ जाए ना कि देर आर नो डेड एंड्स इन लाइफ, ओनली डाइवर्जन्स लीडिंग यू टूवर्ड्स योर डेस्टिनी। होता ये, जस्ट लुक एट बैक एट योर लाइफ। 10 साल पहले व्हाट यू थॉट योर लाइफ इज़ गोना बी, तो जहाँ हम लोग आज बैठे हैं एक्चुअली अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें कहीं से धक्का दिया, कहीं से डोर्स बंद किए। मैं अपनी बात करता हूँ कि अगर इफ़ आई हैड इट माई वे तो आई वुड हैव बीन रनिंग सम इंडस्ट्री समवेयर, या कुछ इस किस्म का काम, बिजनेस कर रहा होता या कुछ कर रहा होता। मैं ये तो नहीं कर रहा होता, मगर क्योंकि अल्लाह ने करवाना था। एंड टू गेट हियर, डू यू थिंक वो सिर्फ इस तरह सिंपल हुआ होगा? डोंट यू थिंक देयर वर लॉट मैनी क्लोज डोर्स, a lot many pushes, a lot many hard times, when would have thought कि when one thinks यार पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, God, maybe I'm a buffoon, कुछ मैं नहीं कर सकता और वो सब, but actually क्या हो रहा है? Actually इसमें क्या है कि when you start, वो अल्लाह पाक जब जहन खोल देता है and you start seeing the big picture of your life, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर, और कुछ चीज़ों के लिए we just have to trust अल्लाह कि अल्लाह अपने ये चीज़ अगर कोई दरवाज़ा बंद किया तो there's something more in it for us, you just learn to wait। तो ये इसमें ना इस बंदे को मैं आई वुड ओनली एडवाइस कि वही देखे कि भाई किसी अल्लाह वाले से ताल्लुक़ कायम करो ताकि ये चीज़ें आपकी सॉल्व कर दे। कोई ऐसी बात नहीं, यू डोंट नीड टू हेट योर सेल्फ, बल्कि ऑन द अदर हैंड यू आर अ ब्लेसिंग बिकॉज यू आर अ क्रिएशन ऑफ अल्लाह सुब्हाना ताला एंड अल्लाह लव्स यू, सो योर वेरी बीइंग इज सो ब्लेस्ड कि द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स लव्स यू, व्हाट मोर डू यू वांट। और यहाँ और अल्लाह पाक खुद कहता है कि अगर कोई चीज़ तुम करते हो और नाकामी हो जाती है तो ये मत कहो कि यार काश मैंने यूँ नहीं किया होता तो ये हो जाता, बिकॉज आई डिड दैट तो आई मेड अ लॉस। अल्लाह पाक कहते हैं नहीं, ये कहो कि बस अल्लाह ने ये नुकसान मेरी डेस्टिनी में लिखा था तो बस ये मेरा मुकद्दर था, ये तो होना ही था, ख़त्म बात। अल्लाह से ब्लेम दैट ऑन मी। तो एक किस्म में अल्लाह भी कॉन्सोलेशन दे रहा है। प्रॉब्लम ये है कासिम, एक्चुअली गोइंग वन स्टेप बैक, कि हमने अल्लाह को पहचाना ही नहीं है एंड वी थिंक कि वी दिस यूनिवर्स इज़ रनिंग माइनस अल्लाह सुब्हाना ताला, और आर लाइव्स आर रनिंग माइनस अल्लाह सुब्हाना ताला, और अल्लाह डज़ नॉट केयर फॉर अस, और अल्लाह डज़ नॉट सी अस, और ही इज़ नॉट कनेक्टेड टू अस 24/7। हाँ वो आई थिंक वो हमारा ये होता है कि वंस इन अ ब्लू मून इट पिक्स आउट अ फाइल, हाँ जी अच्छा ये बंदा है, ऐसा नहीं है। अल्लाह सुब्हाना ताला तो एक सेकंड, हाफ सेकंड, क्वार्टर मिलियंथ ऑफ अ सेकंड हर वक्त हम पे मुतवज्जो है, ही इज़ प्लानिंग फॉर अस हर वक्त। द डिज़र्ट वी हैड, ठीक है, उसमें मैंगोज़ भी थे ना, तो बिस्किट भी था। तो डू यू थिंक दीज मैंगोज़ वर ग्रोन येस्टरडे? क्यों भाई अली, कितना 3 महीने लगते हैं, 2 महीने लगते हैं, 5 साल पहले दरख्त लगता है ना। सो द ट्री जिसके वो मैंगो हमने खाए वॉज मोस्ट प्रॉब्ली मिनिमम ड्यू टू मतलब
एज पर अली इट्स मिनिमम 5 years, ठीक है। फिर वो आम उगा है एंड देन पता नहीं किस जगह से आया और बिका और सब कुछ किया, और फिर मारिया के दिल में आया कि भाई आज आ रहे हैं शेख तो इनके लिए मुझे ये बनाना है। उसके दिल में किसने डाला? माशाल्लाह यू हैव सो मेनी सर्वेंट्स, कुडंट दे हैव प्रिपेयर्ड दीज थिंग्स, दे कुड ना, बट अल्लाह सुब्हाना ताला ने उसके दिल में डाला एंड शी मेड ऑल दीज थिंग्स। ये बिस्किट कौन सी फैक्ट्री में बना होगा, उसके लिए इंग्रेडिएंट्स फ्लावर कहाँ से आया होगा? तो अल्लाह पाक ने ये सारा, एंड दिस रिस्क वाज मार्क्ड कि जो साथ के लिए बना था वो मैं नहीं खा सकता था, जो मेरे लिए बना था हमजा नहीं खा सकता था। तो ईच वो कहते हैं वो ज़र्रा भी वाज मार्क्ड, राइट? सो दिस इज़ हाउ मच अल्लाह पाक इज़ प्लानिंग फॉर अस। ये मैट्रिक्स ऑफ लाइफ है यार, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मैट्रिक्स, वो इफ़ और एंड बल्स क्या चलता है, वो इतना प्लान होता तो अल्लाह ने मेरे और आपके लिए ज़िंदगी कितनी प्लान की हुई है। आपको पता था आपने LSE जाना है, आप यू नेवर वांटेड टू, यू वांटेड टू डू बिजनेस हियर, ठीक है ना, राइट? हाउ डिड यू एंड अप देयर? आप किस तरह यहाँ मिल गए? आप हमज़ा के पास आए, मुफ्ती हारिस ने हमज़ा के पास भेजा, मुफ्ती हमज़ा ने के थ्रू आप इधर कनेक्ट हुए, फिर मेरे दिल में अल्लाह ने डाला कि नहीं यहाँ नहीं, इसको बाहर जाना है, एंड देन आपके दिल में डाला कि इसकी बात सुन लो। डू यू सी, ये दिस इज़ हाउ मच एवरीथिंग इज़ कंट्रोल्ड यार। हम बिला ज़रूरत परेशान हो रहे होते हैं बिकॉज जो आपके वहाँ रिस्क अल्लाह ने लिख दिया है ना, वॉट एवर द फिश यू हैड इन इंग्लैंड वॉज पता नहीं कहाँ पाली गई, बनाई गई, पैदा हुई, और फिर आई कि भाई चलो इस हलाल स्टोर पे जाएगी और कासिम साहब आएंगे और यहाँ खाएंगे। तो अल्लाह की तो इतनी लॉन्ग प्लानिंग है, तो ये मायूसी की कोई बात नहीं। ही डज, नोबडी नीड्स टू हेट देमसेल्व्स। हाँ, जो हमसे गुनाह हो जाते हैं वी हेट आवर एक्शन, बट वो कहते हैं बेहतरीन गुनाह करने वाला वो है जो तौबा कर ले। सो दैट्स अ वे आउट, कोई परेशानी की बात नहीं है। अच्छा, ये हज़रत ये अभी किसी ने फ्रेश सवाल लिखा है, हो सकता है ऑल फिंगर्स पॉइंट टुवर्ड्स मी बट इट्स नॉट मी, आई अश्योर यू। किसने अपना आप को नेम करा था एनोनिमस लायन, आई एम नॉट श्योर व्हाई। फॉर यंग सालिक्स हु आर अनमैरिड, व्हाट शुड दे लुक फॉर इन अ लाइफ पार्टनर? What is the guidance of our Sheikh in looking for a compatible and righteous life partner? Please share guidance for male and female saliks both, please. It's not your question, but maybe everyone wants to get an answer. How do people know they are ready for marriage in today's modern day where it has become so difficult? Societal requirements, money, etc. Fath, आप क्यों पूछ रहे हो यार? आपके तो बच्चे हैं। So this is scary, man. I always say I wanted to have, I mean, I planned Yeah, to have a 4th-floor building, you know. After connecting all the plans made. नहीं, बस whoever comes and connects here is just one wife and one husband. ठीक है। When are you ready for marriage? Point one ये कि शरीयत क्या कहती है इस पर, वहाँ से गाइडेंस है, और इस एज में क्या है। लेट्स बी a little practical. अपनी हया और पाकदामनी बचाने के लिए द सूनर द बेटर, ठीक है। ऑब्वियसली वी ह्यूमन एंड जो एनवायरनमेंट पे हम एक्सपोज्ड है, वेदर इन पाकिस्तान वेदर आउटसाइड, द एक्सपोजर इज़ अब इतना वल्गर एक्सपोजर आ गया है, इवन एडवर्टिजमेंट्स में, बिल बोर्ड्स में, ब्ला ब्ला ब्ला। व्हेन वी वर किड्स ये ऐसी चीज़ें नहीं होती थी। तो द चैलेंज टू preserve your पाकदामनी आर मच हायर। तो इसी वास्ते ना, जो शादी कर सकता हो, जो अफोर्ड कर सकता हो, जिसके पास ये मीन्स हैं, तो उसको तो ASAP शादी कर लेनी चाहिए, ठीक है। इस दौर में मे बी 24, 25 वॉट एवर के ज़रा आपने अगर कहते हो कि कुछ थोड़ा कोई ग्रेजुएशन कर ले या कुछ हो जाए, और अगर आपके पास ये असबाब हैं, दूसरी बात है कि असबाब अगर मौजूद हैं और इंशाल्लाह रोज़ी मुक़द्दर है तो सारी ज़िंदगी चलते रहेगा, ठीक है ना। अब सपोज़ आप उसको अननेसेसरी डिले करते हो, एक आदमी जो अफोर्ड नहीं कर सकता, वो तो इमाम गज़ाली भी लिखते हैं कि फिर उसको तो ऑब्वियसली ही शुड नॉट डू निकाह बिकॉज वो अफोर्ड नहीं कर सक रहा। बट देर आर, आई नो अ लॉट मैनी पीपल, बॉयज़ एंड गर्ल्स, अच्छा जी अभी करियर बनाना है, करते करियर बनते बनते
30, 35, 40 एंड देन इट्स टू लेट द हीरो, ठीक है। और उस पर अब थोड़ा प्रैक्टिकल भी आ जाओ, आप 40 ईयर्स की उम्र में यू गेट मैरिड, सो योर किड इज़ गोइंग टू डू यूनिवर्सिटी व्हेन यू 65, बड़ा अनप्रैक्टिकल हो जाता है। फिर बड़ी एज के अंदर ख़वातीन या उस उम्र की औरतों को भी टू हैव चिल्ड्रन इज़ हेल्थ वाइज भी चैलेंज आ जाता है। तो इट शुड बी, आई मीन आई वुड थिंक कि 24, 25, बट अगेन बाकी है कि इतना ज़रूर हो कि फाइनेंशियली यू कैन, जब आप अफोर्ड कर सकते हो। और बाकी जब हम ये कहते हैं ना कि हमारा कैरियर बन जाए और इतने पैसे हो जाएं और इतने पैसे, देयर नो लिमिट्स टू इट, एक बात। दूसरी है कि अगर आपका कंपेनियन अच्छा आ जाता है और आप रिलेशनशिप अच्छी बना लेते हो तो नज़रों की हिफाजत आसान हो जाती है। वो कहते हैं ईमान मुकम्मल, यही आता है ना, शादी से ईमान मुकम्मल होता है। वी हैव अ मुफ्ती एंडोर्सिंग थिंग्स। तो यही बात है ना, क्यों कि आपकी खुद आपकी गेज़ सही हो जाएगी। और इस दौर में आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट मुजाहिदा इन दिस टुडेज़ टाइम इज़ प्रोटेक्टिंग योर गेज़, प्रोटेक्टिंग योर थाट्स। तो इस्लाम में क्या है, इसी वास्ते है ना कि शादी का इंस्टीट्यूशन एक लीगल इंस्टीट्यूशन, उसमें फ़ायदा क्या होता है कि एक, ये गोरे कहते हैं ना कि जी आपके यहाँ तो 4 शादियाँ हैं, माजत के साथ इनके यहाँ तो 4 भी नहीं है ना, 400 हैं, और वो भी एट अ टाइम है, कभी किधर कभी इधर कभी इधर। हमारे यहाँ तो बन जाता है बंदा, और क्योंकि जो 4 हैं वो बड़े स्ट्रिक्ट पैरामीटर्स के साथ हैं कि आप में सब में इंसाफ करना होगा, विच इज़ आई विल से एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। वैसे भी एक की नौकरी मुश्किल है, 4 की कौन करेगा यार। और दूसरी जो मैं इतना लोगों को साफ मना ही करता हूँ इस बात से कि शरीयत ने तो इजाज़त दी है, मगर वो कहते हैं इंसाफ करोगे, कहाँ से इंसाफ करोगे, एक बात। दूसरा, मगर अगर आपने रिलेशनशिप बिल्ड करके एक में, तो अल्लाह पाक उस, और आपने नज़रों की हिफाजत सही की, अल्लाह पाक उस एक में ही आपको इतना सुकून दे देगा कि फिर आपको कोई और मसला ही नहीं है। तो इस वास्ते अब हर कोई अपने फाइनेंशियल हालात देख ले, जब स्टेबल हो गया है। अब अगर कासिम भाई स्टेबल हैं, अल्लाह ने दे दिया, अब ही से कि जब तक मैं माइक्रोसॉफ्ट का या बैंक ऑफ इंग्लैंड का मैं गवर्नर नहीं बनूंगा तब तक नहीं करूंगा, वो ठीक है, अर्निंग उस वक्त बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बट ज़रूरी नहीं है, यू डोंट हैव टू बिकम यू नो माइक्रोसॉफ्ट का CEO। अल्लाह ने आपको अभी भी इतना दिया है कि अल्हम्दुलिल्लाह, गेट ऑन विद लाइफ। वक्त तो गुजर ही जाएगा, ये क्या पैसे कमाते कमाते हो गए हमजा साहब के 45 साल, तो उस वक्त फिर तो रेडीमेड फैमिली का टाइम आ जाएगा। नहीं वो नहीं, वो कर लेना चाहिए। व्हाट शुड वन लुक, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दीन से मोहब्बत, देखो इसमें मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि दीन से मोहब्बत का अगर कोई बहुत ज़्यादा अमल नहीं भी कर रहा, अभी मैं आइडियल सिचुएशन नहीं भी कह रहा, एक अगर ये है कि हम कहते हैं जी लड़का है, इसकी तो दाढ़ी नहीं है और यूँ नहीं है यूँ नहीं है, ठीक है, होनी चाहिए, मैं मानता हूँ। या वो लड़की है, अभी वो बाकायदा शरई पर्दा नहीं कर रही, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मगर अगर दीन से मोहब्बत करने वाले लोग हैं ना, चाहे लड़का चाहे लड़की, तो आज नहीं कल वो दीन की तरफ खुद ही आ जाएंगे। और अगर कोई आज कुछ कर भी रहा है मगर दीन से नफ़रत करता है, किसी मजबूरी में, आज में उसने दाढ़ी रखी हुई है या वो लड़की पर्दा कर रही है मजबूरी में, तो कल वो गिवन द अपॉर्चुनिटी दूर हो जाएगी। तो ये देख लें कि दीन से मोहब्बत। तीसरा देखो, लुक्स आर इम्पॉर्टेंट, बट याद रखो लुक्स मैटर मे बी फॉर 1 ईयर, बाकी ज़िंदगी अच्छा अखलाक, घर बसाने वाले लोग, अच्छे अखलाक वाले, फैमिली ओरिएंटेड लोग, ये चीज़ें ज़रूर देखनी चाहिए। Have I left anything? No, I think you covered it. This is another question. How can one remain positive in certain tests given to them? For example, the people of Palestine. They test our iman for the better. But what if extreme cases like this actually lead to destruction of faith? One can continue to pray and perform all acts of worship, but how can they attain true hope in their hearts when their entire nation is suffering from a genocide
seeing day-to-day gruesome acts and the wiping out of their entire families despite having strong iman, it may be a lot easier said than done in that situation. Undoubtedly, it's a big. It is undoubtedly a big imtihan, and it's easier said than done, definitely, and it is a big azmaish, but the the one and only way we need to get out of it is by a stronger connection with Allah subhanahu wa ta'ala. We already have an example in the Prophet sallallahu alaihi wasallam. ठीक है, he went through much harder times, and the Sahaba radiallahu ta'ala anhum ajmain. But when because of their very strong connection with Allah subhanahu wa ta'ala, they were able to give their lives with a smile on their face. ठीक है, I'm not saying, I mean, एक ज़माने में the people for Afghanistan जब रशिया के साथ वो लड़ रहे थे, या अभी पैलेस्टाइन में जो है, undoubtedly, I mean, it's a very big आजमाइश, and but जो भी है, how long will this last? Maybe in the next 10, 20 years of our lives, or 50 years of our life. बट फिर जो शहीद हो गया, इस्लाम का कॉन्सेप्ट क्या है कि हमने तो वी हैव टू मूव ऑन, दिस इज़ अ टेम्पररी स्टेशन ना. और आज अगर फैमिलीज़ वाइप आउट हो रही हैं, आई नो अगेन आई से इट्स अ बिग इम्तिहान अनडाउटेडली, और मे अल्लाह गिव एवरीबॉडी इस्तकामा एट दिस टाइम. बट जिसको ये नज़र आ रहा होता है कि ये जो भी हो रहा है ना, कि जो शहीद हो गया वो तो कामयाब हो गया, ही इज़ नॉट फॉर इटर्निटी सक्सेसफुल. एंड ये ऑल दिस इज़ हैपनिंग फॉर the elevation of the darajat of these people who are not, about the stories that I hear or we hear generally, mashallah, their iman is so commendable कि it's Allah has given them strength to really bear this. Weak people like us, हम तो ये सोच भी नहीं सकते, but mashallah, the way they're putting up the resistance, and with all winds against them, they're still standing firmly. तो इनके आखिरत में पता नहीं क्या क्या दर्जात होंगे, एंड अल्लाह विल गिव देम हिम्मा आल्सो अनडाउटेडली. और ये दीज आर, और दूसरा, डू रिमेंबर कि वी बीन सेंट टू दिस वर्ल्ड सो दैट वी बी टेस्टेड. सो हर आदमी जो है इज़ बीइंग टेस्टेड कंटिन्यूसली. कभी वो फरमानी से टेस्ट हो रहा होता है, कभी वो तंगी से टेस्ट हो रहा है. टेस्ट वो हर वक्त हो रहा है. तो ये सहाबा पे ऐसे वक्त क्या नहीं आए थे? भूख फाके से भी हैं और गज़वे में भी लड़ रहे हैं. एंड वी सी द एग्ज़ाम्पल ऑफ हज़रत यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनकी वालदा का, कि द मज़ालिम दैट द मुशरिकीन मेड ऑन देम, ऑन द फैमिलीज़. वी सी द एग्ज़ाम्पल ऑफ बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, and many more. So this is not the first time in the history of Islam. और वो एज अल्लामा इकबाल सेज़ कि मिर्गे हुसैन, कत्ले हुसैन दरअसल मिर्गे यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद. कत्ले हुसैन यानी हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत, मिर्गे यानी यजीद की मौत है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद. देखो, अगेन एक्नॉलेजिंग द ग्रेट इम्तिहान एंड आजमाइश, मगर इस हमारा तो कॉन्सेप्ट ये कि दिस लाइफ इज़ वेरी टेम्पररी. और यहाँ जो भी टेस्ट आता है, जो भी अब वो वहाँ शहीद जो हो गए, अब फॉर इटर्निटी देव गॉट इट मेड. वो तो दे आर नो ऑन दैट वेरी 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 हाई प्लेटफॉर्म ऑफ शहादा. वो तो शुहदा में से है ना. देर जो उनकी जो सफरिंग्स थी, मे बी फॉर 1 year जो सफ़र किया, 2 years सफ़र किया, 3 years सफ़र करी, बट उसके बाद अब तो उनका लाइफ ऑफ प्लेजर शुरू हो गई ना. और व्हाट डज़ द कुरान से कि इनको आप मुर्दा मत कहो, ये तो ज़िंदा, अल्लाह इनको रिस्क देता. तो शुहदा का, सिद्दीकीन के अंबिया, सिद्दीकीन शुहदा, सिद्दीकीन के बाद शुहदा का है. तो अनडाउटेडली दीज आर टेस्टिंग टाइम्स फॉर देम. I asked you this question yesterday, but I think a lot of the guys had a question about this just based off my informal conversations with them. Why does the Sheikh focus so much on becoming active Muslims
especially considering that not all mashaykhs or not all muftis and ulmas emphasize the same, and this dunya is only means for them. बात ये कि हर किसी की तरबियत का अंदाज़ अलग होता है, ठीक है। और another thing is कि every school has a different crowd, so every school makes their own syllabus. For example, कैडेट कॉलेज में अलग किस्म से पढ़ाते हैं, ठीक है। ग्रामर स्कूल में सुबह की परेड नहीं होती 6:30 बजे, कैडेट कॉलेज में होती है। द टाइप ऑफ पीपल देयर, द टाइप ऑफ पीपल हियर। दूसरा ये कि अल्लाह पाक ने, क्योंकि मखलूक इतनी वैरिड है, तो हमारे मशाइख भी ऐसे वैरिड तबीयत के हैं, तो जो जिस तबीयत का हो वो वहाँ जा सकता है। कोई बंदा फारिग है और सिर्फ़ अपने ज़िक्र अस्पार पे ही करना चाहता है, तो वो ऐसा उस तबीयत का शेख ढूंढ रहा होता है। इस फ़कीर के यहाँ आई फील कि वी नीड एक्टिव मुस्लिम्स, वी हैव टू लीड बाय एग्ज़ाम्पल। नॉट दैट देयर इज़ एनी लेस एम्फसिस ऑन योर पर्सनल मामलात्स, ठीक है, वो अपनी जगह पे है। बट आई थिंक ये as a ummah, this is what is lacking on us. We are not talking the talk but not walking the walk. Sahaba used to lead by example. People used to see the Sahaba. अब देखो ना आप इंडोनेशिया में मुसलमान कैसे बने. There was no jihad there. See, Sahaba went there for tijarat, for trading, and people saw those Sahabas and got converted to Islam. So we need active Muslims. What is an active Muslim? अभी जो आपने सवाल किया था ना, फोकसिंग ऑन अ डेली रूटीन, दैट्स इट। एंड व्हाट इज़ आवर डेली रूटीन एज ऑर्डेन्ड बाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दैट्स इज वेरी सिंपल। और इट्स नॉट अ ड्राई रूटीन, इट्स एब्सोल्युटली नॉट अ ड्राई रूटीन। आप सल्लम अज़वाज मुताहरात से मजाक भी कर रहे हैं, उनको तमाशे भी दिखा रहे हैं, यू नो, हबशों का जो तमाशा था आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को दिखा रहे हैं। तो दिस जो हमारा दीन है, इट्स सो ब्यूटिफुल, इट इज़ सो, जिसको हम कहेंगे ना कि वो हकीकत में जो सुकून और प्लेजर और सारा है ना, वो मंशा इलाही में है, ठीक है। जब उसकी, अब मैं थोड़ा सा सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप यूँ समझिए कि उस फ्रीक्वेंसी जो अल्लाह सुब्हाना ताला की एक फ्रीक्वेंसी है, उससे जब हम अलाइन कर जाते हैं ना, तो फिर वो क्या कहेंगे, फोर्स ऑफ ची वाली बात होती है, वी आर गोइंग विद द टाइड, कोई मसला ही नहीं होता। असल चीज़ क्या है कि हम वी वांट टू गो अगेंस्ट द टाइड, मगर जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मंशा के साथ हम लग जाते हैं ना, तो फिर लाइफ बिकम्स ईजी। तो सिर्फ इतनी सी बात है कि हमें डेली लाइफ पे इस तरह फोकस करना है कि शरिया कंप्लायंट हो जाए। एक और सवाल है, does Allah ever give up on you? Say you aren't a huge sinner but have left the practicing element of your deen, such as praying, indulging in more gossip, being disrespectful to individuals, etc., but remain somewhat steadfast in your spiritual beliefs. Despite warnings and signs, you don't get up to practice your deen. Is it a sign that as a punishment, Allah has taken namaz and that faith in your heart away from you? Allah never gives up on you. देखिए, अनटिल वो कहते हैं दो जो वक्त हैं जब तौबा कबूल नहीं होती। इफ़ अल्लाह वांटेड टू गिव अप ऑन यू तो वो तो पहले ही कह देते ना, ठीक है। और एक है कि जब आपको नज़ा का आलम शुरू हो जाए, और एक हुआ जब सूरज जो है वो वेस्ट से निकलेगा, तो 2 2 टाइम्स उसके बाद तौबा कबूल नहीं, उससे पहले तौबा कबूल है। अल्लाह नेवर गिव्स अप ऑन यू। अब यू मे थिंक कि कुरान में तो कहते सुमन बुकमन उमन, तो ये गूंगे हो गए, बहरे हो गए, या कहा कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाया गया कि आप इन पे जितना भी समझाएं ये समझने वाले नहीं हैं। तो यहाँ ये नुक्ता समझना है कि अल्लाह डिड नॉट गिव अप ऑन एनी बॉडी, बट बीइंग अल्लामुल ग़ुयूब ही न्यू कि ये लोग हिदायत पे नहीं आएंगे। पॉइंट 1। पॉइंट 2, जो ये जो मोहर लग गई ना उनके दिलों पे, व्हेन दे वर एडमेंट, कि अंदर से उनको था कि दे न्यू द ट्रूथ बट दे वर एडमेंट कि हमने इसको मानना ही नहीं है, तो वो मोहर एक्चुअली उन्होंने खुद अपने दिलों को इतना काला कर दिया। आप ये जो केस बात कर रहे हैं, इसमें कोई मायूसी की बात नहीं। अल्लाह नेवर गिव्स अप ऑन यू, तभी तो अल्लाह ने आपको तौबा का दरवाज़ा खोला हुआ है ना आपसे। अच्छा, इसमें अगेन लेट हिम नॉट बी, यानी कोई मायूस होने की बात नहीं कि सिर्फ कोशिश करता रहे। वट एवर
वट एवर सिंस ही कैन रिफ्रेन फ्रॉम, कोशिश करता रहे एंड जस्ट 1 इंच ज़्यादा चले जाए, और वट एवर गुड ही कैन डू वो तो कर लेना। 5 नमाज़ें नहीं पढ़ी जाती, 3 पढ़ ले, 2 पढ़ ले, 1 पढ़ ले, कज़ा पढ़ना शुरू कर दे, और आहिस्ता आहिस्ता अपना टारगेट रखे कि जी नेक्स्ट 3 मंथ 6 मंथ मुझे सारा कर देना है। अच्छा, इसमें क्या होगा, वो जाएगा 5 फीट ऊपर जाएगा, फिर 2 फीट नीचे आ जाएगा, कोई बात नहीं, ट्राई एंड ट्राई अगेन। अल्लाह ये देखता है कि ये बंदा कोशिश कर रहा है ना। देखो, लुक एट द, अब मैं हदीस से दे रहा हूँ ना कि वो मामला जहाँ जिस आदमी ने 99 कत्ल किए हुए, फिर वो 100 कत्ल कर देता है, यू हर्ड ऑफ दैट हदीस। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला, वो जब नेकों की बस्ती में जा रहा होता है और वो आधे रास्ते में उसका इंतकाल हो जाता है, तो अल्लाह पाक जब फरिश्ते आपस में लड़ रहे हैं कि अब ये अच्छाई के फरिश्ते लेंगे इसकी रूह या बुराई के, तो अल्लाह पाक क्या कहते हैं, भाई नाप लो, और फिर ख़ुद ही उसका थोड़ा अच्छाई की तरफ कर देते हैं। तो दैट मीन्स अल्लाह तो हर वक्त ही वांट्स टू फॉरगिव अस। अल्लाह पाक खुद कहता है मैं तुम्हें अजाब दे के क्या करूँगा, या आई मीन अगर अल्लाह में जन्नत दे दे तो डज अल्लाह लूज़ एनी थिंग? ही इज़ नॉट लाइक अस ना कि हमारा तो बैंक अकाउंट ठीक है, इवन इफ यू ट्रिलियन तो कुछ ना कुछ कम हो जाएगा, अल्लाह को क्या फ़र्क पड़ता है। और जन्नत उसने बनाई क्यों है? अगर हमें नहीं देनी तो अल्लाह ने खुद रहना है, उसने तो नहीं रह, तो अल्लाह तो ही लव्स अस, और वो तो ही इज़ ऑलवेज वेटिंग फॉर अस। अच्छा, और ये भी याद रखो, आखिरी बात इसमें बता दूँ कि जब आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने गालिबन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया, जिसका मफ़हूम है कि या रसूल सल्लल्लाहु, व्हाट विल अल्लाह सुब्हानहू व तआला डू इफ़ ये सारी लोग नेक हो जाएं, सारे आसमान सारे लोग नेक हो जाएं, तो कहेगा कि फिर अल्लाह पाक एक ऐसी मखलूक बनाएगा जो गुनाह करे और तौबा करे, एंड सो दैट अल्लाह फॉरगिव्स देम, और उसकी शान गफ़ारियत का इजहार हो। तो अल्लाह इज़ ऑलवेज़, हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। प्रॉब्लम हमारा है, हम नहीं चाहते। अल्लाह से कभी मायूस ना हो, अल्लाह से कभी ये मायूस ना हो, अल्लाह ही इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू। और वो कहते हैं जब एक आदमी कहता है अल्लाह मग़फ़िरली, तो व्हेन ही सेज़ अल्लाहुम्मा, तो उस पे ही अल्लाह कह देते हैं मैंने इसकी मग़फ़िरत कर दी। सो तो एंजल से कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, हाउ हैव यू फॉरगिवन हिम, ही इज़ जस्ट सेड अल्लाहुम्मा, ही इज़ नॉट इवन आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के एटलीस्ट ही इज़ acknowledged and realized that I am the, when he has called me, so he's acknowledged and realized that I am the forgiver. तो अब ये मेरी शान नहीं कि I wait for his words कि ओ अल्लाह forgive me, जब उसने ओ अल्लाह ही कह दिया तो अल्लाह forgives। तो आप खुद सोचो कि अल्लाह never, he never gives up on us. We just have 2 more questions officially written left. So can you provide some guidance on the use of social media for Muslim men and women? It certainly does more harm than good, that's for sure. But by that same logic, I ask myself, what is the need for anything in life? And then doubts of me becoming extremist, overly self-centered and isolated, etc. come in. Even a smartphone does more harm than good. There are so many people in the world that also do with just a simple phone. देखिए, सोशल मीडिया इज़ नॉट अ मैंडेटरी थिंग, येस यू कैन लिव विदाउट इट, कोई बात वो बात नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हम समझते हैं कि सोशल मीडिया से नॉलेज आएगी, बट देयर वर एंड देयर स्टिल आर अ थिंग दैट वी नो एज बुक्स। ठीक है, पहले लोग वो पढ़ते थे, उसका बिल्कुल अफादियत होती थी। तो परहैप्स अगर कोई रिफ्रेन करना चाहता है सोशल मीडिया से तो बहुत अच्छी बात है, इन द सेंस के स्पेशली यूट्यूब और इस किस्म की चीज़ों से इट्स बिल्कुल बात बिल्कुल सही। जो ग्रे एरिया है इट इज़ सो स्ट्रॉन्ग कि वहाँ यू हैव टू रियली बी ऑन योर गार्ड। तो अगर आप समझते हो कि नहीं मैं फिसल जाऊँगा तो इट्स अ गुड आइडिया, रिफ्रेन फ्रॉम इट। आप ठीक है सिर्फ व्हाट्सएप पे या कम्युनिकेशन के लिए जो आपको ज़रूरत है वो ले लो, बयानात आप व्हाट्सएप पे ऑडियो सुन लो अगर बहुत आपका सुनना, वरना किताबें पढ़ लो। और फिर तीसरी चीज़ ये द प्रैक्टिकल थिंग विच हैज़ बिन गोइंग ऑन फॉर 1400 ईयर्स, गेट अ टीचर, किसी अल्लाह वाले के पास जाओ, अपनी इस्लाह करवाओ, और वो आपको पूरा, वो तो आपको होलिस्टिकली पूरा दिन का प्रोग्राम बताएगा, पूरी तरतीब आगे बता देगा कि हाउ शुड यू बी लीडिंग योर लाइफ, और हाउ शुड यू बी, व्हाट शुड यू बी डूइंग टू एलिवेट योर स्पिरिट। ठीक है, अपनी रूह को किस तरह ऊपर लाना है। सोशल मीडिया ठीक है बहुत उससे फ़ायदा भी होता है, ये नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हम खुद प्रेजेंस हमारी है यूट्यूब पे, फ़ायदा ज़रूर होता है। बट अगर आप चैलेंज समझ, तो हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब यही फरमाते हैं
वो फरमाते हैं कि अगर आपको ये डर है कि आप ये स्मार्टफोन की वजह से गड़बड़ में पड़ जाओगे तो देन कीप वो बटन वाला नोकिया 3400 या वो तो कोई फ़र्ज़ नहीं है सोशल मीडिया एंड देयर आर वे आउट्स आप बुक्स पढ़ें वो पढ़ें आखिरी क्वेश्चन क्या था कि व्हाट्स द पर्पस ऑफ एनीथिंग Yeah, what's the purpose of where is it? Even a smartphone does more harm than good. There are so many people. Doubts only, yeah, well, that's it. What is the need for anything in life? अगर सोशल मीडिया नहीं तो सोशल मीडिया नहीं वो कहना चाह रहे हैं कि सोशल मीडिया नहीं है तो फिर मतलब सही है नहीं लेता उससे फ़ायदा क्या स्मार्टफोन भी नहीं रखता मैं सिंपल फ़ोन रखता हूँ व्हाट्सएप नहीं रखता लोगों को खाली टेक्स्ट मैसेज करूँगा ये बोलना चाह रहे ठीक है इफ़ योर वर्क एंड इट रियली डिपेंड्स ऑन योर वर्क ठीक है अगर आप उससे काम चलता है तो व्हाई नॉट क्योंकि आपको तो ये देखना कि मैं यहाँ पैदा क्यों हुआ हूँ और मुझे तो अल्लाह की मार्फत हासिल करनी है और मुझे तो अपनी रूह पे काम करना है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून कि अल्लाह ने तो पैदा ही मुझे किया अपनी इबादत और इबादत उलमा फरमाते हैं यानी इससे मार्फत के लिए पैदा किया है तो आई शुड बी कॉन्सनट्रेटिंग ऑन माई टारगेट्स ना हर आदमी को आपको पता है कंपनी में टारगेट मिलता है ना ये सेल्स टारगेट है तो जो अपना टारगेट पूरा करता है वो कामयाब होता है तो हमारा तो टारगेट वो है हम डीफोकस हो गए मेकिंग अदर टारगेट्स कि हमारी इतनी सोशलाइजेशन होनी चाहिए इतनी पीआर होनी चाहिए इतने यार दोस्त होने चाहिए वो सब हमारी प्रायोरिटीज़ है नहीं बट ऑन द अदर हैंड अगर वो सिर्फ इतना सूखा वाला काम करेगा ना वही मैं बार बार एम्फसाइज़ करता हूँ कि भाई आपको यू नीड टू गो टू समबडी एंड टेक गाइडेंस देयर हैज़ टू बी अ टीचर जो इस रास्ते के आपको निटिग्रिटीज़ भी बताए और आपको इस तरह उसमें से लेके चले कि विच इज़ डूएबल फॉर यू अभी कोई मुझे पहले दिन आपको कहते कि कासिम इतनी एक्सरसाइज करनी है और इतना ये करना फलाना है एंड यू नॉट बीन एक्सरसाइजिंग फॉर 5 years तो क्या होगा योर मसल्स फुल हो जाएंगे ना सो हिल टेक यू स्लोली अच्छा कासिम जस्ट वर्क आउट फॉर 5 minutes 10 minutes डू दिस 2 किलो के बार उठा लो करते 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 ऑल्दो मकसद तो यही है कि वहाँ तक पहुँचना है 6 पैक्स बनाने तो बट हिल टेक यू स्लोली ना तो इसमें क्या होता है कि आदमी फिर वो जो घबराता नहीं है वो इतना ऐसा सूखा नहीं हो जाता कि वो मायूस नहीं होता तो कोई ऐसी बात नहीं बिल्कुल करें इंशाअल्लाह